Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your English teacher Nupur Chandra. Welcomes you all in our channel Sims Official. So, in this channel we are trying our level best to help you out in your studies in this lockdown time and when our school is not open for you all. So, today I am going to share a topic of your MCB's grammar exercise, and that is lesson 1's topic, subject and predicate. In this topic I will detail you both these parts, subject and predicate. Hope you all will understand it very good. Now, a complete simple sentence has a subject and a predicate. Whenever we say that it's a complete sentence, means it will definitely consist one subject and one predicate. Now I will tell you further. All the words in a subject form the complete subject and all the words in a predicate form the complete predicate. It's a very typical point, bachcho, that you need to understand. If you are saying subject, means the words what are there, they'll be the part of that, and that known as a complete subject or a complete predicate. Like, for example, you and I. It's a complete subject of two pronouns and end. Are learning about sentences. This full portion is known as complete predicate. So, we'll tell you some more bullets about it to make it more clear. The subject in a sentence names whom or what the sentence is about. जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो उस पूरे सेंटेंस की बोन होता है. तो अ कंप्लीट सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, it can be a pronoun or it can be a noun phrase. Noun means a name of a person, place, animal, thing. Pronoun means the words what we can use on the places of noun. And noun phrase means a very small group consisting one noun in itself. So these three can be a complete subject. For example, Nikki plays football. Here Nikki is a noun. It's a name of a girl and it's a subject. So you can say that's a complete subject. Nikki plays football. Nikki is the subject of this sentence. If we will talk about pronoun, then I can also give some example for that. We are going for dinner. Here in this sentence, we is pronoun but it is the subject of this sentence. यहाँ पर हम लोग डिनर करने बाहर जा रहे हैं तो हम यानी कि वी क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. नेक्स्ट, नाउन फ्रेज, माय मदर्स नेम. इन दिस सेंटेंस मदर इज नाउन, माय एंड नेम्स आर अनदर वर्ड एंड माय मदर्स नेम इज अ नाउन फ्रेज. These three words are constituting and forming a noun phrase and it's the subject of this sentence. So, have some more examples. Nikki reads detective stories. अब यहाँ से नई स्टोरी शुरू होती है. Nikki सब्जेक्ट हो गया, reads action means does something. तो यहाँ से शुरुआत हो गई आपके प्रेडिकेट पोर्शन की. वैसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पॉइजनस स्नेक्स हैव फैंग्स. पॉइजनस स्नेक यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड हैव फैंग्स पजेसिंग्स दिखा रहा है सब्जेक्ट से की. तो हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ में हम उसकी पजेसिंग यहाँ पर बता रहे हैं. अ सेंटेंस में ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट.
यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड होती है ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स जस्ट आफ्टर द वर्ब इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में वर्ब के तुरंत बाद हम जो भी वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड कहलाता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मेघना वॉच्ड द कार। यहाँ पर मेघना सब्जेक्ट है, मेघना वर्क कर रही है, डूअर है, वॉच्ड उसका डूइंग वर्ब है, और हर कार इज ऑब्जेक्ट है, और वॉच्ड और हर कार ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रेडिकेट। In a sentence, the subject is a person or thing that does the action. Doer, जो काम को कर रहा है वो क्या हो गया? Subject. And in the same sentence, the object is a person or thing that receives the action of the subject. और उसी sentence में object क्या होता है? जो subject के किए हुए verb के effect को या response को bear करता है, receive करता है, वो कहलाता है object। और ये दोनों ही चीज़ सेंटेंस के बिल्कुल मेन आर्म्स की तरह, बिल्कुल मेन पार्ट्स की तरह काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राधा फीड्स द बेबी। राधा नाउन है, सब्जेक्ट है, फीड्स यहाँ पर वर्ब है, उसका एक्शन है, डूइंग वर्ड है, एंड द बेबी इज ऑब्जेक्ट। राधा क्या करा रही है? फीड करा रही है। किसे करा रही है? बेबी को। तो राधा डूअर हो गई, काम कर रही है। काम क्या कर रही है? फीड करा रही है। और किसको? बेबी को। यानी कि जो भी वर्ब है उसके एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? बेबी कर रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो मेरी टीचिंग को रिसीव कौन कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं। वैसे ही द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और whom। ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का आंसर करता है, क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। जैसे अभी हमने बताया राधा फीड्स बेबी, तो वो क्या हो गया? whom। राधा किसको फीड कर रही है? बेबी को। क्या कर रही है? फीड कर रही है। ओके, जैसे इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स और बताएंगे बच्चों, जिससे कि आपको ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज ईजी हो जाए। द बॉयज़ प्लेड वेल एंड वॉन द ट्रॉफी। यहाँ पर बॉयज़ क्या हो गया? आपके सब्जेक्ट हैं। प्लेड वर्ब हो गया आपका, एंड वॉन द ट्रॉफी, क्या मिला उनको? ट्रॉफी। तो ऑब्जेक्ट ने क्या आंसर किया? वॉट दे रिसीव? ट्रॉफी। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट इज सेड ऑफ द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में बात बताई जा रही है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो जो मेन चीज़ है, जो काम कर रहा है या जो मेन है, और उसके बारे में जो बात बताई जा रही है वो हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? एक तो वर्ब होती है, वर्ब फ्रेज भी होता है कभी कभी, जब दो वर्ब, मेन वर्ब और उसके साथ में उसकी कॉन्स्टिट्यूटिंग वर्ब मिलकर वर्ब फ्रेज बनाती है। एंड ऑल द वर्ब्स आफ्टर द वर्ब, और वर्ब के बाद में जितने भी वर्ड्स रहते हैं ये सब मिलकर एक पूरा कंप्लीट प्रेडिकेट फॉर्म करते हैं। आई विल टेल यू सम मोर एग्जांपल्स फॉर दैट। राम द टेलर, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज स्टिचिंग, ये हो गई वर्ब फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है और स्टिचिंग मेन वर्ब है। माई ड्रेस फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ये पूरा क्या हो गया? आपका रिमेनिंग पोर्शन हो गया। और इज स्टिचिंग माई ड्रेस फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ये पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इन दिस सेंटेंस राम द टेलर, ये हो गया सब्जेक्ट, एंड इज स्टिचिंग माई ड्रेस फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ये हो गया कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट में आपका वर्ब आना और ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ कंप्लीट सब्जेक्ट हैज़ अ सिंपल सब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल श्योर बात है कि जब कंप्लीट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक सिंपल सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। वैसे ही कंप्लीट प्रेडिकेट में भी एक सिंपल प्रेडिकेट होना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, तो उसको भी हम कैसे अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए जब आप कंप्लीट सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि उसके साथ एक सिंपल सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो वो सिंपल सब्जेक्ट क्या होगा? मेन नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकती है। सपोज हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, यू एंड आई विल गो टू द पार्क। यू
प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन है, एंड कंजक्शन की तरह यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर नाउन प्रोनाउन के साथ कुछ एक वर्ड्स हम और यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टिकट चेकर चेक्ड द टिकट्स। अब यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट क्या है? टिकट चेकर। लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट सब्जेक्ट करके बोलें तो वो क्या हो जाएगा? द टिकट चेकर। टिकट चेकर आपका मेन नाउन है, मेन सब्जेक्ट है, और उसके साथ हमने द जब जोड़ दिया तो वो आपका बन गया कंप्लीट सब्जेक्ट। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सब्जेक्ट एंड द कंप्लीट सब्जेक्ट। द कंप्लीट प्रेडिकेट, now we will talk about the predicate, begins with a verb and tells what the subject does, has or his। ये verb से स्टार्ट होगा और उसके बाद सब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा क्लियर करके आपको बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या उसके पास क्या है, या वो है क्या, व्हाट इज़ उसकी बीइंग क्या है। सो हम इसको कैसे बता सकते हैं? द सिंपल प्रेडिकेट इज़ द वर्ब इन द कंप्लीट प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट मेनली क्या है? जो वर्ब पोर्शन है आपका पूरे कंप्लीट प्रेडिकेट में, वो होता है आपका सिंपल प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी ट्रेवलिंग टुगेदर। अब यहाँ पर सिंपल प्रेडिकेट क्या होगा? विल बी ट्रेवलिंग। ये वर्ब फ्रेज है, यहाँ पर विल आपका हेल्पिंग वर्ड है और ट्रैवलिंग मेन वर्ब है। तो ये दोनों मिला के आपके क्या बन गए? वर्ब फ्रेज। और इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेडिकेट। और अगर ये पूरा टुगेदर तक बोलते तो हम इसको कंप्लीट प्रेडिकेट बोलते। अ सिंपल सब्जेक्ट एंड अ सिंपल प्रेडिकेट कैन बी मोर देन वन वर्ड। ज़रूरी नहीं है कि केवल एक वर्ड हो, जो मैं अभी तक भी बता रही थी कि इट कैन बी अ नाउन फ्रेज, इट कैन बी अ प्रोनाउन, ग्रुप ऑफ प्रोनाउन in subject case, and in predicate case it can be a verb phrase। वहाँ पर एक helping verb और एक main verb के साथ वहाँ पर दो words से ज़्यादा या दो words भी हो सकते हैं। For example, राजधानी एक्सप्रेस was running। राजधानी एक्सप्रेस 2 words, simple subject, and was running 2 words again, simple predicate। पूरा एक ही नाम है राजधानी एक्सप्रेस, लेकिन 2 वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स ज़्यादा है। सो इट्स नॉट वेरी मच नेसेसरी कि केवल एक ही वर्ड सिंपल सब्जेक्ट या एक ही वर्ड सिंपल प्रेडिकेट बनाए। दिस वॉज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आई होप द टॉपिक इज मच मोर क्लियर टू यू, एंड नाउ यू पीपल विल बी एबल टू डू द एक्सरसाइज बाय योर ओन। सो hope that this will definitely benefit you. Thank you for watching the video. God bless you all. Please take care of yours. Bye bye. We will meet again in the next video. Till then, take care, stay healthy and stay happy. Spread positivity. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।